Hello students, how are you? I hope you all are well. Myself Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher. We discussed about Bohr's atomic model in last video. Today we will discuss about limitation of Bohr's atomic model. Okay, to come to the point, limitations of Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. Today we will discuss about Bohr's atomic model. This is an important limitation of Bohr's atomic model. Okay, the limitation of Bohr's atomic model are as follows. First limitation is Bohr's atomic model explains Bohr's atomic model explains spectra of atoms or ions having क्या है बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन्स spectra of atoms ions having only one electron. Bohr's atomic model explains spectra of atoms ions having only one electrons. Let us consider an example. Let us take an example is H plus. Hydrogen atomic number 1. We know very well atomic number equal to number of electrons. It means hydrogen has only one electrons. It means Bohr's atomic model easily explains the spectra of hydrogen atom. And the example like as Li plus 2. Okay, to lithium atomic number 3. Here is a more than one electrons. But we know very well Bohr's atomic model explains spectra of atoms or ions having only one electrons. It means lithium loses 2 electrons and contain plus 2 charge. और if lithium lose 2 इलेक्ट्रॉन, अगर लिथियम क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इसका भी स्पेक्ट्रा बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करेगा. ओके, तो हाइड्रोजन लिथियम. अनदर एग्जांपल जैसे बोरान एटॉमिक नंबर 5, तो क्या हो जाएगा B+4 है ना, B+4. या अनदर एग्जांपल लाइक एज हीलियम He. Helium atomic number is 2. It means helium contain 2 electrons. Helium contain 2 electrons. It means helium जब क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या हो जाएगा He प्लस, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 हो जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1. Okay, so in the case of lithium number of electron is 1. In the case of hydrogen number of electron 1. So such type of atoms or ions which contains only one electrons, Bohr's atomic model explain spectra. क्या करता है, स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्पेक्ट्रा only one electrons. ठीक है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. So this is the first limitation of Bohr's atomic model. Okay, and second limitation. This model does not
does not consider repulsion between two electrons. This model does not consider repulsion between two electrons. Suppose that this is the atom or this is the number of orbit which is present around the nucleus. Suppose that in this orbit present 2 electrons, इसमें 8 electrons, इसमें 1 electron. Here is the 2 electrons, इसमें 8 electrons, यहाँ पे 1 electrons. Okay? जब 2 electrons होगा उस पे चार्ज कौन से हैं? Electrons है नेगेटिव चार्ज. तो रिपल्सन बिटवीन 2 electrons, इसमें 2 electrons हैं, जब वो रिपेल करेंगे या 8 electrons से 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 1 है. तो रिपल्सन बिटवीन 2 electrons. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, अगर चार्ज सेम है तो क्या होगा उसमें रिपल्सन होगा. बट बोर्स एटॉमिक मॉडल डज नॉट कंसीडर रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल दो इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन रिपल्सन को कंसीडर नहीं करता है. इफ दिस मॉडल इज नॉट कंसीडर रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस यू कैन से दिस इज लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. ओके, this is the second limitation of Bohr's atomic model. Okay, what is the third limitation? This model, third limitation is this model does not consider arrangement. This model does not explain कर सकते हैं, does not consider arrangement and position of electron in extra nuclear multi electronic atoms. Okay, so this model does not explain arrangement and position of electron. या कह सकते हैं कि arrangement and distribution of electron in extra nuclear multi electronic atoms. It means the elements or atoms which contain more than two electrons. It means you can say multi electronic atoms or ions. उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इन सब के बारे में यह मॉडल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है. इफ दिस मॉडल नॉट गिवन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस यू कैन से दिस इज लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. ओके, दिस इज द थर्ड limitation of Bohr's atomic model. Okay, and fourth limitation. Okay, the Bohr's model does not consider Bohr's model does not consider de Broglie equation. The kind of Bohr's atomic model does not explain de Broglie concept. Okay, the Bohr's atomic model does not consider de Broglie concept. According to de Broglie, according a moving particle है
पार्टिकल है डुअल नेचर। अब मूविंग पार्टिकल है डुअल नेचर। मूविंग पार्टिकल्स के पास क्या होता है? डुअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है। कौन कौन सा? एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर है वेव नेचर। एंड इक्वेशन गिवन बाय डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, where the lambda is the wavelength, h is the Planck constant, m is the mass and v is the velocity of moving particles. Okay, or h upon p. What is the p? P is the momentum. तो multiple of mass and velocity is known as momentum. इसे हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। सॉरी, मोमेंटम, है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास क्या होता है? डुअल कैरेक्टर होता है, डुअल नेचर होता है, लाइक एज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। बट अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक थ्योरी मूविंग पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन है ओनली वन नेचर, लाइक एज द पार्टिकल नेचर, है ना। बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मूविंग पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन है डुअल नेचर, लाइक एज द पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। इट मींस Bohr's model does not consider de Broglie concept. If Bohr's model not consider de Broglie concept, it means you can say this is limitation of Bohr's atomic model. Okay. Next, Bohr's atomic model against the Heisenberg. This is the scientist name. Heisenberg principle. Bohr's atomic model against the Heisenberg principle. According to Heisenberg के अकॉर्डिंग क्या होता है कि it is impossible to determine. Suppose that कि इलेक्ट्रॉन और स्मॉल मूविंग पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, जैसे मूव करेगा प्लेस चेंज होता रहेगा, ठीक है, प्लेस चेंज होता रहेगा, उसी के साथ साथ उसका वेलोसिटी भी चेंज होता रहता है। सपोज दैट हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल एक ही स्पीड से नहीं चलती, कभी साइकिल धीमी हो जाती है, कभी साइकिल तेज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग साहब ने क्या बताया कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन position and momentum. Suppose that position is the x, del x, and momentum is the del p. Okay, तो कह सकते हैं क्या? It is according to Heisenberg, it is impossible to determine. ये कहते हैं according to Heisenberg, it is impossible to determine position and momentum simultaneously. It is impossible to determine position and momentum of the moving particle simultaneously at a time. मतलब कि एक ही समय पर, एक निश्चित समय पर हम किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसका पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड करेंगे, उसके मोमेंटम में क्या आ जाएगा? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर उसके मोमेंटम को सही फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे, तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम of the subatomic particles like as an electron simultaneously at a time. Okay, तो एक ही समय में पोजीशन और मोमेंटम दोनों का एग्जैक्ट पता करना क्या है? इम्पॉसिबल है। बट अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उन्होंने क्या बताया कि when a definite energy of electron revolve in definite energy level, then we can easily calculate position and momentum. But according to Heisenberg, it is impossible to determine simultaneously like the position and
momentum at the time. It means you can say कि Bohr's atomic model against the Heisenberg principle. Okay. Next, this is the fourth limitation of Bohr's atomic model. Okay. Next, fifth, it could not explain. It could not explain. It could not explain the splitting of spectral line into fine line. It could not explain the spectral line. It could not explain the fine splitting of spectral line. ये कह सकते हैं कि it could not explain the splitting of spectral line into the fine lines. तो spectral line होता है. Spectral line always present in the form of band. In the form of band. और इसकी जो स्प्लिटिंग होती है उस स्प्लिटिंग को बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं करता है. अगर नहीं करता है तो इट मींस यू कैन से आप कह सकते हैं कि दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना. तो आप कहेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. ओके. और last limitation, it does not explain. It does not explain. It does not explain G-man and Stark effect. G-man and Stark effect. मतलब this model does not explain G-man effect as well as Stark effect. So it is the question कि what is the G-man effect and what is the Stark effect. Okay. तो first हम बताएंगे what is the G-man effect. कहेंगे the splitting of spectral line. The splitting of spectral line into the fine lines under the influence of magnetic field. Under the influence of magnetic field is known as G-man effect. क्या कि the splitting of spectral line into the fine lines under the influence of magnetic field is called G-man effect. Okay. And what is the Stark effect? कहेंगे क्या कि the splitting of spectral lines into the fine lines under the influence of electric effect. Electric effect is known as Stark effect, है ना. तो Bohr's atomic model not explain G-man effect and Stark effect. It means it is the limitation of Bohr's atomic मॉडल. ओके. तो ये आपका था पूरा क्या लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. ओके. समझ में आ गया होगा आप लोगों को. चलिए, बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट टॉपिक इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसके लिए एक हम क्या लेंगे, वैक्यूम चैम्बर. दिस इज द वैक्यूम चैम्बर. हियर इज द एनोड प्लेट और हियर इज द कैथोड प्लेट. तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, है ना. कैथोड प्लेट इज द मेड अप ऑफ एलिमेंट लाइक एज पोटेशियम,
cesium, etc. For photoelectric effect, used such type of elements which have minimum ionization potential. When we move top to bottom in the periodic table, like as hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. So when we move top to bottom in the periodic table, ionization potential decreases. It means you can say potassium, rubidium, cesium, francium have very low ionization potential and it is used for photoइलेक्ट्रिक इफेक्ट पोटेशियम cesium और rubidium है ना. तो कैथोड प्लेट इज द मेड अप ऑफ पोटेशियम cesium और rubidium which have low ionization potential. Okay, this is the light और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन. This is the electron which is travel कर रहा है डायरेक्शन में एनोड प्लेट की तरफ और यहाँ पे लगा हुआ है एमीटर. नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, लाइट चली गई है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज. हेनरिक हर्ट्ज. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज. अब व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कहीं क्या कि एज इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज इंस्टेंट ejection of electron from the metal surface when light of particular यानी क्या एज इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और wavelength इंसिडेंट ऑन इट. है ना. क्या होता है? व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज एज इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when this is the light, okay, incident light when light of a particular frequency or wavelength incident on it. okay, जैसे हम एक निश्चित एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है इंसिडेंट करते हैं किस पर? मेटल सरफेस पर, लाइक अगर पोटेशियम cesium और रुबिडियम. ठीक है. एज सून एज तुरंत ही क्या होता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज द इफेक्ट. ठीक है. मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है? इफेक्ट है. और दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यहां से हम फोटॉन इंसिडेंट कर रहे हैं.
किस पर? मेटल सरफेस से। तो फोटो, ठीक है, और निकल क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इफेक्ट कौन सा हमारा हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एज इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज द वैक्यूम चैम्बर। और ये हमारा क्या है? कैथोड प्लेट। और ये हमारा क्या है? एनोड प्लेट। और ये हमारा एमीटर है जिसको हम किससे जोड़ते हैं? बैटरी से। किससे? बैटरी से। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमारे इमिट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? What is the observation of photoelectric effect? What is the observation of photoelectric effect? Observation. Okay. तो क्या होता है? The electrons are ejected from the metal surface. From the metal surface as soon as the beam of light strike on metal surface. It means there is a no time lag between striking of light on the metal surface and ejection of electron from the metal surface. It means मैंने क्या कहा कि there is no time lag between incident या striking of light and ejection of electron from the metal surface. जैसे ही लाइट इस पे हम क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे, उस पे हम पास करेंगे, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हमारा इमिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब there is no time lag between striking of light and ejection of electron from the metal surface. Okay, और क्या कहेंगे? The number of ejected electrons from the metal surface is proportion to the intensity किस पर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना? क्या कहेंगे कि द नंबर of electrons ejected is proportional to the intensity or brightness of light. यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह किस पर डिपेंड करते हैं? The number of ejected electrons depends upon the intensity of light or brightness of light. जैसे जैसे हम ब्राइटनेस को बढ़ाते जाएंगे या लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, उतने ही उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे इमिट होंगे। ओके, तो फॉर ईच मेटल सपोज दैट यहाँ पे पोटेशियम यूज कर सकते हैं और सीजियम यूज कर सकते हैं और रुबिडियम यूज कर सकते हैं। ओके, बट फॉर ईच मेटल देयर इज अ सर्टेन frequency of light on which electron is emitted. तो फॉर ईच मेटल, प्रत्येक मेटल के, चाहे पोटेशियम हो, सीजियम हो, रुबिडियम हो, फ्रेंसियम हो, फॉर एनी मेटल, कोई भी मेटल अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो फॉर ईच मेटल देयर इज अ सर्टेन frequency of light on which electron ejected or emitted. This frequency of light is known as threshold frequency. अब क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का रिजेक्ट होगा। मैंने कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट मेटल्स या फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, दीज आर मेटल्स, फॉर डिफरेंट मेटल्स है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। और फॉर ईच मेटल, जो प्रत्येक मेटल है, फॉर ईच मेटल्स देयर इज अ सर्टेन frequency of light, certain frequency of light on which the electron is ejected. This frequency of light is known as threshold frequency. Okay, मतलब कि वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वह सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसको, वह सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जिसको इंसिडेंट करने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड एज न्यू नॉट और न्यू जीरो। ओके, और न्यू जीरो से अगर हम कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड a certain frequency of light that is represented as nu naught or threshold frequency. For different elements or for different elements have different threshold frequency. Okay, तो एक फार्मूला होता है लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट। Okay, what is the lambda naught? Lambda naught is equal to threshold wave length, ठीक। एंड न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फिर क्या होगा, कहेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब हम यहाँ से फोटॉन को या लाइट को इंसिडेंट करते हैं किस पर, मेटल के सरफेस पर, तो करता क्या है कि ये मेटल सरफेस जितनी एनर्जी होता है ये पूरी एनर्जी इसको डोनेट कर देता है, दे देता है। और ये जो सरफेस है ये तो कुछ एनर्जी को यूज कर लेता है इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में, और बाकी एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन यूज करता है किसके लिए, फॉर काइनेटिक, मतलब ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए। तो हम कह सकते हैं क्या कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। और इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is high, if the frequency of incident radiation is the high, then the kinetic energy of the electron is also high. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो ये आपका था क्या, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि एट इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when light of a particular frequency or wavelength incident on it. ओके, ये आपका था क्या, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक आप मेहनत से पढ़ते रहिए एंड एंजॉय विद केमिस्ट्री। थैंक यू।